Yesterday we solved the +1 physics paper of first term. Today we will solve +2 physics exam multiple choice question of first term. And first question is MCQ is the minimum charge on body can be. The minimum charge on body can be 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. And a second question is equal charges are placed on three vertices of the square if the force between Q1 and Q2. मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे थ्री चार्जेस प्लेस हैं. Q1 है A पॉइंट पे, B जो Q चार्ज है B पॉइंट पे, और तीसरा जो हमारे पास Q चार्ज है वो C पॉइंट पे है. इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो A हमने ले रखा है. हमने यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन रेशियो ऑफ F12 एंड F13 विल बी. तो जो हमारा फर्स्ट फोर्स है वो F12 है. यू कैन सी इन दिस फिगर कि जो Q है जो पॉइंट A पे रखा हुआ है वो B पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको हमने F12 से रिप्रेजेंट किया है. एज इट इज जो Q है वो जो पॉइंट B पे रखा है वो C पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको हमने F13 से शो किया है. और ये फोर्स जो है वो अवे है फ्रॉम द अदर चार्जेस बिकॉज यहाँ पे एज वी सी इन दिस फिगर की every charge is a positive charge and we know that like charges are repel each other. That's why forces are in outward directions F12 and F13. And I calculate this question is here F12 as we know that from the Coulomb's law Q square over 4 pi epsilon naught A square. And here AC we have to find out the AC, and AC we can find out from the Pythagoras theorem also. And AC we have come root 2A and Q3 is equals to F13 and Q3 F13 is equal to Q square over 4 pi epsilon naught 2A square, and the ratio becomes F12 हमने find out किया है Q square over 4 pi epsilon naught A square, और जो F13 हमने find out किया है Q square over 4 pi epsilon naught 2A square. बिकॉज AC का जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था वो हमारे पास रूट 2A आया तो उसका स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा. इसका जो रेशियो लेते थे 2:1 एंड द राइट आंसर इज B मींस 2. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी K square in between two charges in place of air, then the maximum traction force acting between them is decreases by the K times. And the next question is in hydrogen atom the Coulomb force of vector of an electron revolving around the nucleus in an orbit of radius is this. And as we know that in hydrogen atom K square over R square R vector. And the next fifth question is two charges of equal magnitude are placed at a distance r from each other and force acting between them is F. If the magnitude of charges halves, then the distance between them is double. The new force between them will be. तो as we know that यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है. ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ है, नेक्स्ट में उन्होंने एक चार्ज को हेल्प कर दिया मीन्स Q/2 कर दिया है, और वो जो दो फोर्सेस हैं उनका रेशियो निकालना है. तो F में जो हमारा फर्स्ट होगा वो Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा जिसमें चार्जेस हेल्प किया है वो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर 4 R स्क्वायर हो जाएगा. रेशियो जब निकालेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा F/16 के इक्वल आ जाएगा. और राइट ऑप्शन इज J. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू गिवन ABC is equilateral triangle plus Q charges placed on each vertex. Electric field intensity at point is 0. We note this thing. And seventh question is the distance between two plates is 2 centimeter and the potential difference of 10 volt is applied in between them, then the value of the electric field. And as we know that electric field is equals to voltage over distance, voltage difference divided by the distance. तो voltage हमें given है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 वोल्ट दे रखा है, और डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है. मीटर में लेके चलेंगे तो कोई भी टेस्ट -2 हो जाएगा. सोल्व करेंगे तो 500 न्यूटन पर कूलम के बराबर आ जाएगा. Next is proton is about 1840 times heavier than electron when it is accelerated by a potential difference 1 kV kilovolt, then its kinetic energy will be. Kinetic energy as we know that charge into potential charge given है, potential given है, multiply करेंगे तो हमारे पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा. तो जो kinetic energy होगी वो किसके इक्वल होगी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट मींस राइट ऑप्शन इज C. Next ninth question is ninth question a charge of Q 16 microcoulomb is given to the conductor sphere of radius r equals to 20 centimeter. The electric field intensity is in this case will be 0. Right option is same. Next 10 is the capacitor is 4 into 10. Capacitor जो capacity है वो 4 into 10 to minus 6 farad given है. Potential जो है वो 100 volt given है. In this question we have to find out the energy. तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर पता है हमें. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.02 जूल आ जाएगा. नेक्स्ट जो है वो 11वां क्वेश्चन है हमारे पास. द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C. तो एज वी नो दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला C इक्वल्स टू F/d होता है. C2 डिस्टेंस जब हेल्प कर देंगे तो D/2 होगा. रेशियो लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 2C के इक्वल आ जाएगा. एज इट इज राइट ऑप्शन इज 2C. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 में जो फिगर है इसको मैंने सोल्व किया है. सीरीज में जो होता है वो 1/2 + 1/2 हो जाएगा मींस 1/2 फराड आ
जो पैरेलल है 1 + 1 2, right option is 2 microfarad. And 13 in the 13th question, the plates of parallel plate capacitor are separated by from each other with velocity v. If the distance between the plates of any moment is d, then the rate of change of the velocity with the time depends upon which of the following terms, 1 by d square. And next question is the electric potential at a point xy in v equals to minus k x electric current intensity and a distance from the origin is equals to 1 by r square. Right option is D. Next, specific resistance of the Magnin wire is 15 to 10 to minus 8 ohm meter. The resistance of the Magnin tube of length is 10 centimeter. तो इसमें जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, R इक्वल्स टू L ओवर एरिया अप्लाई होता है. R गिवन है, L गिवन है, हमारे पे गिवन है, तो भी इजीली कैलकुलेट R. एंड ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी है, आप देख सकते हैं. इसका आंसर हमारे पास बेसिकली जो है 5 × 10 to minus 6 दे रखा है, बट यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम ऑप्शन जो ए है ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, 10 to minus 6 और के साथ जाएंगे. 16 क्वेश्चन में द रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर जो डिग्री सेल्सियस है एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो RT इक्वल्स टू R0 1 + अल्फा d है. 17 क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, जो है अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे होगा, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करने पे होगा, तो ऑल ऑफ दिस फैक्टर आ जाएगा, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ सेल इज मोर देन EF जब ऑन चार्जिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.45 volt and 0.145 ohm inter-resistance placed inside a door. Each cell supplies electric current. The filament of a lamp of inter-resistor 1.5 ohm. The value of the electric current, हमें पता फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR होता है. यहाँ पे मैंने जो है वो बना दिया है, सर्किट भी बनाया है कि 1.45 वोल्टेज की वोल्टेज का एक सेल ले लिया मैंने, उसके साथ जो रेजिस्टेंस है उसका 0.15 जो है वो रेजिस्टेंस है. इसी तरीके से दूसरा जो हमने वोल्टेज लिया वो भी 1.45 है, रेजिस्टेंस इज सेम, और हमने एक जो बल्ब लगाया 1.5 जो है उसका इंटर-रेजिस्टर ओम है, तो V इक्वल्स टू IR होता है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 × 1.45 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1.65 + 1.5, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है, हमें I फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा. वोल्टेज क्या है हमारे पास, बैट 2 सेल्स है तो दोनों सेल की वोल्टेज आ जाएगी यहाँ पे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. और नीचे हमारे पास रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.6 आ जाएगा. इसमें 1.6 एम्पियर आएगा बेसिकली, बट इसमें नैनो एम्पियर है, तो नैनो हम यहाँ से कट कर देंगे. बेसिकली 1.6 एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट में देखो हमारे पास जो है 20 क्वेश्चन है. 20 क्वेश्चन में हम किरचॉफ करंट लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी जंक्शन है, जंक्शन पे जितनी भी हमारे पास वायर्स में से करंट जो आ रही है और उस जंक्शन से जितनी भी करंट्स बाहर जा रही है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होती है. फॉर एग्जाम्पल देखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे I1 जा रहा है तो I2 और I3 में डिवाइड हो रहा है. बी पे जो है वो I2 एंटर करे, इसी तरीके से सी पे जो है I2 और I3 एंटर करा, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो I2 + I3 आएगा. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. 21 question, first and second laws of Kirchhoff's prove none of these option D is correct. Next 22 an effective resistance of 36 ohm and shunt by resistance of 4 ohm, what percentage? तो resistance जो है resistance divided by the shunt plus 1 करेंगे तो 10% आ जाएगा. As it is mathematical जो Biot-Savart law है, mu naught over 4 pi ideal cos r factor over r cube. This is a very easy question. Next 24 the range of the voltmeter is 0 to V volt and is connected with resistance of R in series. When a series of 2R is connected within series, the range becomes 0 V prime. The relation between V and V prime और इसकी जो पूरी कैलकुलेशन मैंने यहाँ सोल्व की हुई है. यहाँ पे जैसे कैल्विनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में लगा देते हैं, तो जो वोल्टेज होगा उसका हमारे पास फॉर्मूला IG जो कैल्विनोमीटर करंट होता है R + G हो गया, V प्राइम एज इट इज हो गया, IG हो गया, रेजिस्टेंस इस केस में डबल कर दिया तो 2R + G हो जाएगा. इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट में जो फॉर्मूला वो आ जाएगा, V प्राइम इक्वल टू 2V - VG ओवर R + G. इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो D आएगा, V डैश लेस देन 2 वोल्ट. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कलर कोड में बेस्ड क्वेश्चन है ये. कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन बैंड्स इन ऑरेंज, ब्लू, येलो, ब्राउन एंड गोल्डन, देन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. तो ये कलर कोड जो है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने जो है वो बना रखा है. देखो फर्स्ट जो है वो बेबी रोए, ग्रेट ब्रीडिंग, वेरी गुड वाइफ. जो फर्स्ट लेटर है बी है, बी का मतलब ब्लैक होता है, ब्लैक का मीन्स 0 होता है, ब्राउन मीन्स 1 होता है, रेड मीन्स 2 होता है, ऑरेंज मीन्स 3 होता है, येलो मीन्स 4 होता है, और हमारे पास ग्रीन मीन्स 5 होता है, ब्लू मीन्स 6 होता है. तो उसने फर्स्ट कलर ब्लू दे रखा है तो ब्लू का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. फिर उसके बाद येलो दे रखा है तो येलो का हमारे पास क्या 4 आ जाएगा, 4, तो इसलिए 4 आ गया. ब्राउन, ब्राउन का क्या होता है 1, तो 1, तो 6 for 1 ohm is the right answer. Let's do it with the energy. ऐसा यूनिट ऑफ सेल इंडक्शन इज हेनरी.